Hello everyone, Dr. Nargis is here in the live session. I conducted this session for the students because I want to help you to prepare your documents for the admission. If you want to submit your application for the admission, you must listen carefully all the steps. Students, are you here? Okay, hurry up, join this live session. I will add more detail. If you have any question, you can ask in the comment. Okay, first of all, I want to give the introduction. If you want to get admission for example, the South Korea, and for example, I just open the university website. I want to open the Inje University. I entered the name in the Google. You know better than me, I think so, how to use the Google. So गूगल पर आपने क्या करना है, इंडिया यूनिवर्सिटी, जैसे लेट्स सपोज मैंने इस यूनिवर्सिटी का नेम एंटर किया है. आप किसी भी यूनिवर्सिटी की डिटेल चेक कर सकते हैं. इंडिया यूनिवर्सिटी, इफ यू वांट टू चेक द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट, यू नीड टू ओपन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. अगर आपकी लैंग्वेज चेंज है, आप यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोरियन, इंग्लिश एंड चाइनीज, यू कैन सी 3 लैंग्वेजेस आर हियर. So I selected the English. अगर फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट कोरियन लैंग्वेज में है तो फिर आपने क्या करना है, इसको इंग्लिश में पहले चेंज कर लेना है. सो आपकी हेल्प हो जाएगी बाकी डिटेल चेक करने में. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस सेशन का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आपने डिपार्टमेंट वगैरह चेक कैसे करने हैं. फॉर एग्जाम्पल इज द वेबसाइट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी. You can see information about NJ academics. In the academics, for example, you completed the bachelor program from Pakistan and you want to get enrolled in the masters, or for example, you completed your masters, MPhil, MBA or whatever from Pakistan and you want to apply for the PhD program. आपने सबसे पहले क्या करना है, academics में जाके अपना डिपार्टमेंट चेक कर लेना है. ग्रेजुएट स्कूल, here you can see the detail: general, graduate school, public health, and many. On the other side you can see the other detail. So the session of today I conducted because I want to tell you how to prepare your documents for the admission. बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता कि जो एडमिशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करने हैं, कैसे उनको फिल करना है, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो वो क्या करते हैं, जाके जो डिफरेंट ऑफिसेज बने होते हैं एडमिशन के लिए, वहाँ से हेल्प लेते हैं. आई विल नॉट प्रेफर, आई विल से यू शुड अप्लाई बाय योर सेल्फ. यू कैन डू, इफ यू completed your bachelor's or master's, then you can do, you can apply by yourself. For example, the admission to graduate program. And here you can see the detailed information. Is also the option of language, English language. I already selected. Graduate students, application guideline, department, and other information. Here you can see the detailed information. For example, in our country we say the prospectus of the university, 2024 spring admission guide for the international students. You can click and check, for example, admission schedule, academic program, where's the eligibility criteria, required documents, important notes, tuition and scholarship. So आज का जो सेशन है वो हमने कंडक्ट किया है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड. कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं. तो क्या है,
in the month of May, admission will be open and you can apply for that. 2024 the month of May एडमिशन ओपन हो जाते हैं और टाइम बहुत कम होता है, तो फिर आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है. बट बिफोर दैट यू मस्ट प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स. ओके, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए और ट्राई करें कि आप वाइट बैकग्राउंड में अपनी पिक्चर्स डेवलप करवा लें, बिकॉज वाइट बैकग्राउंड इज एक्सेप्टेड इन साउथ कोरिया. फिर क्या है कि आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं. जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट किया है, तो आपने क्या करना है, किसी भी प्रोफेसर से या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवा लेने. बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट और एक्सपेक्टेड. समटाइम क्या होता है कि जो हमारी डिग्री है वो थोड़ा लेट आती है, बट ऑन द बेस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट वी कैन यूज ट्रांसक्रिप्ट टू अप्लाई फॉर द एडमिशन. और आप एक्सपेक्टेड सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं यूनिवर्सिटी से. इसके साथ आपने ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी है एक्सपेक्टेड सर्टिफिकेट के साथ. मास्टर्स डिग्री सर्टिफिकेट और एक्सपेक्टेड ग्रेजुएट ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिशियल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. यहाँ पर क्या है कि आपने आइट्स टेस्ट देना है. मोस्टली क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आइट्स टेस्ट रिक्वायर करती हैं. अगर आपका प्लान है एडमिशन का, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, जापान और इस टाइप की कंट्रीज़ जो कि नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज उनकी नहीं होती, तो मोस्टली इन कंट्रीज़ में आइट्स की अगर आपके स्कोर कम भी हों, आइट्स बैंड अगर कम भी हैं, तो एक्सेप्टेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आइट्स में अगर आपने 5.5 भी ले लिए हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाता है. 6 बैंड पर भी एडमिशन हो जाता है. और इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिशियल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ये आपने बनवा लेना है अपनी यूनिवर्सिटी से भी. मैंने अपने पेज पर भी इसका जो सैम्पल है वो अपलोड कर दिया है. आप वहाँ से डाउनलोड करके और यूनिवर्सिटी को वो शो करा के बना सकते हैं. अपने डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें ये वाला लेटर चाहिए, तो वो आपको इजीली बना कर दे देंगे. सबसे फर्स्ट काम आपने क्या करना है कि आपने जो एजुकेशन कंप्लीट की है, जो भी डिग्री कंप्लीट की है, आपने यूनिवर्सिटी से उसकी ट्रांसक्रिप्ट लेनी है. ट्रांसक्रिप्ट लेने के बाद अगर आपको डिग्री नहीं मिली या डिग्री आपको लगता है कि थोड़ा टाइम लेगी, तो आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेड डिग्री सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से बनवा लेना है. या क्या होता है कि हम समटाइम अर्जेंट डिग्री के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हमें शॉर्ट टाइम में डिग्री मिल जाती है. आपके पास पासपोर्ट की कॉपी हो, पासपोर्ट अपने बनवा लें. पासपोर्ट की कॉपी आपने साथ में अटैच करनी है. अपनी पिक्चर अटैच करनी है. रिकमेंडेशन लेटर आपने यूनिवर्सिटी से बनानी है और आपने वो अटैच कर देने हैं. रिकमेंडेशन लेटर इज रिक्वायर्ड. 2 recommendation letter you must have. For example, one recommendation letter you can get from head of department and the other you can get from any faculty or the assistant professor, research professor or any professor. बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैं आपको शो करवा दूंगी, हाउ टू फिल दीज डॉक्यूमेंट्स फॉर द एडमिशन. एप्लीकेशन फी at the next column of application fee you can see the circle. It means yes, application fee is required. Proof of financial affordability ये भी आपने अटैच करना है. मोस्टली क्या होता है कि जब आपके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं होता, प्रोफेसर एक्सेप्टेंस आपके पास नहीं होती, then you must need to show the near about $18,000 statement.
स्टेटमेंट मीन आपने यूनिवर्सिटी में ये स्टेटमेंट जस्ट इसका प्रूफ देना है। आपने बैंक में बैलेंस शो करवाना है। यू हैव $18,000 इन योर बैंक अकाउंट। वन डे स्टेटमेंट आपने जस्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देने की नीड नहीं है यहाँ पर। O mean required and next the other. Okay, on my page future diamonds career counseling, you are the future diamonds, and you can see जैसे पाकिस्तान में हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। आपकी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है, कंसिडर होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। सो आपने क्या करना है, इस टाइप का ये जो मैंने सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड किया हुआ है सैम्पल, आपने अपना नेम, डिग्री नेम, पीरियड ऑफ स्टडी और बाकी इंफॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग एंटर करके, आपका स्टूडेंट नंबर होता है वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट में लिखा हुआ होता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग, अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपने ये फॉर्म फिल करना है। और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, तो आपने ये सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और रजिस्ट्रार के या ट्राई कीजिए कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर आपको ये डॉक्यूमेंट साइन करके दे देते हैं तो। इसके अलावा आई टोल्ड यू मस्ट हैव द रिकमेंडेशन लेटर, 2 रिकमेंडेशन लेटर टू गेट एडमिशन फॉर द साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी। तो मैंने इसका सैम्पल भी अटैच कर दिया है, बिकॉज स्टूडेंट्स को इनिशियल स्टेज पर आफ्टर कंप्लीटिंग द बैचलर प्रोग्राम दे डोंट नो हाउ टू मेक द recommendation letter to apply for the higher education admission. So मैंने क्या किया है, यहाँ पर अटैच कर दिया है ये फॉर्म भी, रिकमेंडेशन लेटर। आपने क्या करना है, इस रिकमेंडेशन लेटर को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके, अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करके उसके अकॉर्डिंग आपने बना लेना है। आप किसी भी 2 टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट and any other faculty, the permanent faculty, for example the assistant professor, associate professor or professor. You can request to any professor or head of department or the director that I need this document to get admission for higher education. Sometime क्या होता है कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं they are too much busy in their official work, so sometime वो क्या कहते हैं कि आप ऐसे करें कि हमें फॉर्मेट ला दें, किस अपनी इंफॉर्मेशन एंटर कर दें, बाकी हम उसको रिव्यू करके थोड़ा मॉडिफाई करके और आपको साइन कर देंगे। तो इसलिए मैंने आपकी हेल्प के लिए ये रिकमेंडेशन लेटर का सैंपल अटैच कर दिया है। यहाँ पर ऊपर आपने हेडिंग देनी है, रिकमेंडेशन लेटर फॉर स्टूडेंट, रिकमेंडेशन लेटर फॉर योर नेम। You need to enter your name. Okay. Now let's talk about how to fill the admission application forms. In Jai University admission, I already told you how to open this page and how to check the detailed information about the required documents and the admission criteria and eligibility requirements. So here on this website admission link, application guidelines, you can see there is the attachment of application form. You will click on it and download the application form. Now I'm going to open. Okay. At first you can see there is the application form. I'm showing you this document is for specific for each university. For example, India University have this type of format and the other university have their own format. But क्या है कि
सेम चीज़ें होती हैं, आपको बस इंफॉर्मेशन रीड करनी है और अपनी इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग एंटर करनी है। तो हर यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो द नंबर 1 इज एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाइंग डिग्री प्रोग्राम। प्लीज टाइप और प्रिंट क्लियरली इन कोरियन और इंग्लिश। ओके, apply degree program. In which program you want to apply for the admission? For example, you completed your bachelor from Pakistan and you want to apply for the masters. Then you will select master's program. If you want to apply for the PhD, you will select the PhD. And if you want to apply for the combined masters and PhD program, because many students have intention to get more higher education. For example, after completing their master's program, they also have detailed plan, a fixed plan about the PhD admission as well. After completing their masters, they have planned to do the PhD as well. सो इसमें यहाँ पे क्या ऑप्शन होती है कि आपको पहले मास्टर्स में एडमिशन लेना पड़ता है, फिर पीएचडी में दोबारा से एडमिशन लेना पड़ता है। अगर आपका हायर एजुकेशन मास्टर्स एंड पीएचडी का प्लान है, you have planned from masters to PhD, then you must select, you can select the combined masters and PhD program. आपको वन टाइम एडमिशन लेना पड़ता है मास्टर्स एंड पीएचडी कंबाइंड प्रोग्राम में, और आपका मास्टर्स 2 to 3 years में होने के बाद वही आपकी जो आपको न्यू से एडमिशन नहीं लेना पड़ता, आपकी जो डिग्री है वो कंटिन्यू रहती है पीएचडी प्रोग्राम में। देन द नेक्स्ट इज अप्लाइंग डिपार्टमेंट एंड एकेडमिक एडवाइजर। एकेडमिक एडवाइजर मीन आपके पास किसी प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस है, क्या आपको किसी प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस दे दी है। क्या होता है कि हम यूनिवर्सिटी वेबसाइट ओपन करते हैं, वहां पे प्रोफेसर्स की डिटेल चेक करके प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं कि प्रोफेसर आई वांट टू वर्क विद यू, आई वांट टू वर्क इन योर लैब, आई वांट टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट लाइक दिस एंड आप प्रोफेसर को, अपने एकेडमिक एडवाइजर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको उनकी लैब में वर्क करना है, उनके रिसर्च इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट है, यू हैव सेम रिसर्च इंटरेस्ट एंड यू वांट टू गेट एडमिशन, यू वांट सुपरविजन ऑफ दैट प्रोफेसर। अगर प्रोफेसर आपको एडवाइजर मीन प्रोफेसर, अगर आपको प्रोफेसर जो हैं एक्सेप्टेंस दे देते हैं, पहले ही रिकमेंडेशन दे देते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, उनका नेम यहाँ पर लिख देना है, एडवाइजर प्रोफेसर नेम, and here the department of, in which department you want to apply, you will enter the name of the department here. The next, in the applying department and academic advisor, you can see here is the option of English track. Obviously you don't know the Korean language, so you have intention to apply for the English track. Then what you will do, on the at front of English track, you will enter, you will write down the O. Yes, O mean yes, for English track you want to apply for the admission. Your application is for English track, not for the Korean track. Okay, next is personal data. Here you will enter your personal data, as you know, your specific information. You will enter your basic information, for example the name, the family name and the given name. Family name mean the second name, or your family name mean to say your father name. Mostly we consider second name as a father name. What's your father name? And given name mean to say your first name and your actual name. Name in Korean, if applicable, no, you're not applicable, so just leave it. Date of birth, nationality, place of birth, passport number, and then the other information. Next is okay, at number 9 you can see there is the option of email. You will enter your accurate email address. You need to enter the correct email address. आपने यहाँ पर वो email ID एंटर करनी है जो आपके यूज में है, बिकॉज यूनिवर्सिटी आपको कोई भी रिस्पॉन्स बैक देगी आफ्टर रिसीविंग योर डॉक्यूमेंट्स,
तो क्या है कि आपको उस ईमेल आईडी के थ्रू ही फर्दर कम्युनिकेशन होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से. ओके, द नेक्स्ट इज, it's also very important, number 10, the name of person to contact in case of an emergency. You can enter your father or mother name or the guardian of you. Number 11 is for the students who are already in Korea. Language proficiency. Please enter your score or level in the appropriate field. Korean proficiency, just leave it. On the English proficiency. English proficiency. Mostly the students are interested in IELTS score, so you will enter the IELTS score. For example, 5.5, 6, 7, 8, whatever. अगर आपके पास IELTS स्कोर इस टाइम पर नहीं है तो आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आपने IELTS की रजिस्ट्रेशन कराई हुई है बट आपको अभी तक रिजल्ट रिसीव नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेंशन कर देंगे रिजल्ट विल बी अनाउंस ऑन दिस डेट और द रिजल्ट वेटिंग, लाइक दिस. द नेक्स्ट इज प्रोफिशिएंसी इन अदर लैंग्वेज. You can enter here the other language, for example, the Urdu, just leave it. Academic career. The next is academic career. आपका जो academic career है आपने उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर कर देनी है. यूनिवर्सिटी, name of the university, what's your major, course major, GPA obtained, date of admission and date of graduation. Academic career में आपने अपनी education history add कर देनी है. For example, at first you will enter your bachelor's. If you want to get enroll in the master's program, then at first you will enter your latest degree, bachelor's program. You will enter the name of university, then the course, major, आपका major क्या है, department and major, obtained GPA, आपने कितना CGPA obtained किया है, और आपकी date of admission क्या थी, और आपकी डेट ऑफ ग्रेजुएशन ये आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मेंशन होती है. आपकी बैचलर ट्रांसक्रिप्ट पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, आप वहां से देखकर इसे फिल आउट कर सकते हैं. बैचलर प्रोग्राम यू हैव कंप्लीटेड फ्रॉम पाकिस्तान, देन यू विल एंटर योर डिटेल ऑफ बैचलर प्रोग्राम, देन इंटरमीडिएट एंड यू विल मेक एडिशनल कॉलम हियर. यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने बैचलर्स के बाद इंटरमीडिएट के बाद आपने जो हाई स्कूल है मैट्रिक उसकी कॉलम ऐड कर लेनी है, रो ऐड कर लेनी है, और आपने उससे रिलेटेड अपनी बाकी डिटेल ऐड कर देनी है. द नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन और रिसर्च कैरियर. इफ यू हैव एनी ऑफिशियल जॉब और रिसर्च कैरियर, आपकी किसी भी टाइप की आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई आपकी पोजीशन है, परमानेंट है या पार्ट टाइम है, आप ये इन्फॉर्मेशन वहां पे एंटर कर सकते हैं. नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और कंपनी, किस कंपनी में आपकी जॉब है आप यहाँ पर वो ऐड कर दें, आपका जॉब पीरियड क्या है, आपकी पोजीशन क्या थी, होटल मैनेजर और द लेक्चरर और द रिसर्चर, वट एवर द पोजिशन इज, यू विल एंटर हियर, एंड द ड्यूटीज, आपकी ड्यूटीज वहां पर क्या क्या आप काम करते थे, किस टाइप की आपकी जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. द नेक्स्ट इज family relationship. Here you need to enter the detail of your family registration certificate. You can get the family registration certificate from Nadra. Okay, the father, mother. 2 row you can see here about father, mother name. In English you will enter here date of birth of your father, the place of work. If your father have any job, you can write down any work here, and the salary in USD. For example, you can write 500 USD or
whatever 1000 USD whatever you want to write है। आप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन फैमिली रिलेशनशिप में एंटर करेंगे वो आपकी सैलरी का, फादर मदर इनके प्रूफ नहीं मांगेंगे कि हमें अपने आपके फादर की सैलरी का प्रूफ दें, इस टाइप की ऐसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन, ऐसे इस टाइप का कोई बात नहीं होती। देन आपने क्या करना है, मदर, जैसे मैंने जब PhD के लिए अप्लाई किया था तो मैंने नेम एंटर किया था, फादर की डिटेल मैंने ऐड कर दी थी। मदर की जगह पर आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन में क्या करते हैं कि अगर आपकी मदर जॉब नहीं करती, एम्प्लॉयमेंट उनकी नहीं है, तो आप हाउस वाइफ यहाँ पे जस्ट ऐड कर दें। सैलरी you can write 0 or no salary or like this, or if you want to write any salary you can do it. Application for dormitory mean you are applying for the admission. Do you want to avail the facility of the hostel? Dormitory, dorm mean hostel. तो अगर आपने एडमिशन के साथ साथ आपने कोई प्राइवेट, आपके कोई जानने वाले अगर कोरिया में हैं और आपने किसी फ्रेंड के साथ कंबाइंड शेयरिंग में अकोमोडेशन लेनी है, देन यू विल नॉट गो फॉर इट। आप इसको फिल नहीं करेंगे, एप्लीकेशन फॉर डॉर्मिटरी मीन हॉस्टल, आप इसको फिल नहीं करेंगे। बट अगर आप किसी को नहीं जानते, आप यहाँ पर अलोन है और आपको डॉर्मिटरी में ही स्टे करना है, डॉर्मिटरी ठीक होता है, जब फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं डॉर्मिटरी बेस्ट होता है। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको फिल कर देना है ताकि आपको बाद में ये प्रॉब्लम ना हो कि आपकी डॉर्मिटरी में आपको स्पेस नहीं मिलती है, इस टाइप का इशू आपको ना फेस करना पड़े। प्लीज टेक इन अप्रोप्रिएट फील्ड, लिव इन, live out, live in obviously dormitory application, in which campus you want to get admission, you will select the same campus for the dormitory as well. For example, Incheon University International Trade Department, if I talk about that campus is located in Kime campus, then you will choose the option for the International Trade Business School, or like this you will select the option of Kime campus, and the village you can see Biotech Village. The very important point, how to support tuition fees and living expenses. How you will support your tuition fee and living expenses. If you will apply for the admission for any university, you will see this type of option in the application form. You can see different options. Applicants, personal fund, sponsor sport. Sponsor sport mean to say कि आप जो डिग्री यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जिस डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपके पर्सनल फंड्स मीन आपके फादर, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, या आपके पास पर्सनल बैंक बैलेंस है। और सॉरी, एप्लीकेंट पर्सनल फंड मीन टू से आपके फादर ने आपको ही मतलब गिफ्ट किया हुआ है अमाउंट आपके पास है, या आपके खुद जॉब होल्डर हैं आपके पास है। स्पॉन्सर सपोर्ट मीन टू से आपके फादर, आपके फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, या इसके अलावा अगर आपके पास जो सपोर्ट है वो किसी और सोर्स से, फॉर एग्जांपल समटाइम क्या होता है, HEC स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं। मैंने सुना है कि HEC स्कॉलरशिप भी होते हैं जो HEC के थ्रू अप्लाई होता है। आप बाकी डिटेल चेक कर सकते हैं, मुझे उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं आइडिया इस टाइम पर। तो उसके बाद क्या है, स्कॉलरशिप स्पॉन्सर्ड बाय, सबसे फर्स्ट था पर्सनल फंड, कि आपके पास पर्सनल बैंक बैलेंस है। स्पॉन्सर फंड, you want to get support from your father, family, or any other third party. And the next is scholarship sponsored by the Korean government, the university, the government of home country, or the other. For example, अगर आपके पास HEC sport है, HEC हमारी गवर्नमेंट स्पोर्ट में काउंट होती है, तो आप स्पॉन्सर स्पोर्ट के साथ साथ उसको स्कॉलरशिप स्पॉन्सर्ड बाय में भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास JKS कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, JKS कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है, इसकी भी एप्लीकेशन डेडलाइन होती है अप्लाई करने की, या इसके अलावा कोई का एडमिशन प्रोग्राम भी आजकल ओपन है। इस टाइप का किसी भी टाइप का कोरियन गवर्नमेंट अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी, यू विल क्लिक ऑन यूनिवर्सिटी, यू विल सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी ऑप्शन। अगर आपको प्रोफेसर फंडिंग दे रही हैं तो आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लें, और या फिर अदर्स में मेंशन कर दें। यूनिवर्सिटी बेस्ट है कि आप सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल आप 85% फीमेल स्कॉलरशिप पर हैं, या आपको प्रोफेसर से फंडिंग मिल रही है, या आपको किसी प्रोजेक्ट से फंडिंग मिल रही है, तो आप यूनिवर्सिटी को ओके कर दें और उसके साथ डिटेल थोड़ी बहुत मेंशन कर दें अगर आप करना चाह रहे हैं तो, या अदर्स में मेंशन कर दें। इसके अलावा फंड फ्रॉम अदर सोर्स, आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं लगती, आपके पास कोई और
सोर्सिंग का फंड है आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन, यहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइंस भी गिवन है। हाउ टू राइट डाउन योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, प्लीज राइट अबाउट योर मोटिवेशन टू अप्लाई एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस एंड volunteering activity, educational और research achievements। मोटिवेशन क्या है अप्लाई करने की, एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या है, वर्क एक्सपीरियंस किस टाइप का है, आपकी वॉलंटियर एक्टिविटीज किस टाइप की हैं, और आपकी एजुकेशनल या रिसर्च अचीवमेंट्स क्या हैं। टाइम न्यू रोमन 11 font size and please type in Korean or in English. Please write in as much as detail as possible, not exceeding 3 pages, single spaced with the font Time New Roman in the size 11 points. नेक्स्ट, योर स्टडी प्लान एंड पर्पस ऑफ स्टडी इन साउथ कोरिया। आपका स्टडी प्लान क्या है, आपका रिसर्च प्रपोजल भी, आप स्टडी प्लान आप यहाँ पे बेसिक एंटर करके स्टडी पर्पस ऑफ स्टडी इन साउथ कोरिया क्या है, आप यहाँ पे बेसिक बेनिफिट्स टू स्टडी इन साउथ कोरिया एंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना स्टडी प्लान यहाँ पे लिख देना है कि आपका क्या स्टडी प्लान है। प्लीज राइट अबाउट योर पर्पस और गोल ऑफ स्टडी, टाइटल और सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। आपका पर्पस क्या है, आप क्यों कोरिया आना चाहते हैं, क्यों एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ऑब्वियसली यू नो बेटर देन मी, व्हाट्स इन योर माइंड यू विल राइट डाउन। देन आपने क्या करना है, स्टडी प्लान। स्टडी प्लान मीन आपने रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे शॉर्ट रिसर्च प्रपोजल एंटर करना है। ऐसे नहीं है कि आपने लेंथी सा कोई प्रपोजल बनाना है, शॉर्ट सा आप एक रिसर्च प्रपोजल बना लें और उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर कर दें। 5 पेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टडी टाइटल, आपका रिसर्च का टाइटल क्या है, आप क्या रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं। डिटेल स्टडी प्लान, फ्यूचर प्लान आफ्टर स्टडी एट इंजॉय यूनिवर्सिटी, और फ्यूचर प्लान आपके क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर एजुकेशन फ्रॉम मास्टर्स टू PhD, you can say I will continue my higher education, or if you have any plan for the job. बेस्ट ये है कि आपने यहाँ पर लिख देना है कि आप स्टडी गेन करने के बाद अपने कंट्री, अपनी होम कंट्री जाके सर्व करना चाहते हैं अपनी कंट्री को। बट अगर आपका हायर एजुकेशन प्लान भी है आप वो भी लिख सकते हैं। फिर क्या है, आई क्लैरिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस एप्लीकेशन इज करेक्ट एंड ट्रू। 2024 मंथ आपने एंटर कर देना है, उसके बाद डेट एंटर करनी है। एप्लीकेंट्स नेम यू नीड टू राइट डाउन योर नेम एंड योर सिग्नेचर। अपना नेम लिख देना है और सिग्नेचर आपने कर देने हैं। और यहाँ पर ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड कोऑपरेशन इंजॉय यूनिवर्सिटी कीमे कैंपस रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और बाकी ये एड्रेस कंप्लीट गिवन है। आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पोस्ट करेंगे तो आप तब इस टाइप के एड्रेस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। कंसेंट ऑफ कलेक्ट एंड यूज पर्सनल डेटा, जिसे हम कहते हैं कि एग्रीमेंट्स होते हैं, तो आपने इसको ओके करके अपने साइन कर देने हैं। यस आई डू कंसेंट, आपने इस पे ओके कर देना है। यस आई डू कंसेंट, yes I do consent. You need to write down the year, month and date versus your name and your signature. Okay, the very important point is, मैंने पहले आपको बताया था कि आपने यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन लेटर बनवा लेने हैं। वो तो आपके फ्यूचर उसमें काम आते हैं कि एडमिशन एप्लीकेशन में अपने साथ अटैच करने होते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने अपना भी रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ होता है,
ये जो रिकमेंडेशन लेटर है ये आपने एक फिल करना है, बट जो पहले मैंने आपको बताया था वो रिकमेंडेशन लेटर आपने 2 बनवाने हैं और वो साथ अटैच कर देने हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन में प्लस पॉइंट कंसीडर होता है वो। अच्छा, उसके बाद है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एप्लीकेंट्स इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगी, वर्ड्स योर नेम, योर फैमिली नेम, योर फादर नेम, नेशनैलिटी इज पाकिस्तानी, अप्लाइंग डिग्री प्रोग्राम इज मास्टर्स, अप्लाइंग मेजर फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ट्रेड, फॉर रिकमेंडर। आप ये रिकमेंडेशन लेटर अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से फिल करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एचओडी और डायरेक्टर आपका ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फिल कर रहा है, तो आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपको अच्छा सा रिकमेंडेशन लेटर मतलब ये फिल कर दें। Try to get excellent and true exceptional, top 2% and top 10% or very good. Okay, ये जो फर्स्ट 3 है ना, वेरी गुड, एक्सेलेंट एंड ट्रूली एक्सेप्शनल, क्लासिफिकेशन इज गिवन academic achievement, future academic potential, language proficiency, responsibilities and creativity and communication skills, further interpersonal skills and leadership skills. तो ये आपने क्या करवा लेनी है, एक्सेलेंट एंड ट्रूली गेट करने की ट्राई करनी है कि ये आपको जस्ट समटाइम क्या होता है कि प्रोफेसर्स बहुत बिजी होते हैं, दे विल से जस्ट फिल इट बाय योरसेल्फ एंड आई विल मेक अ साइन एट द एंड। प्रोफेसर्स ऐसे कहते हैं, नॉट मी, प्रोफेसर्स समटाइम, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, प्रोफेसर्स बट उसको रिव्यू करते हैं, देन अगर वो कंसीडर करते हैं कि वाकई आपने अच्छा फील किया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटीज़, अगर प्रोफेसर को लगता है कि आपने थोड़ी बहुत मिस्टेक की है तो फिर आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर लेते हैं। आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से फिल करवा लेनी है और उसके बाद यहाँ पर जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसका नेम आ जाएगा, उसके सिग्नेचर आ जाएंगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के, पोजीशन और टाइटल। फॉर एग्जांपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का पोजीशन और टाइटल आ जाएगा। अगर डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अगर प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, व्हाट इज द पोजीशन और टाइटल ऑफ दैट पर्सन, उसकी कंप्लीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, आपका यूनिवर्सिटी का नेम क्या है जिनसे आप ये बनवा रहे हैं, देन आपने उनका यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल एड्रेस होता है, घर का एड्रेस नहीं लिखना। आई विल से अगेन एंड अगेन, यू डोंट नीड टू मेंशन योर द होम एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, you need to mention the official address here. Then the official university telephone number and the fax, zip code of Pakistan, in which city you are living, you will enter the zip code. Letter of consent on education verification, ये लेटर आपने फिल करना है। ये आपने लेटर हेड ऑफ डिपार्टमेंट से या यूनिवर्सिटी से फिल नहीं करवाना। यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू फिल दिस डॉक्यूमेंट। This letter is to confirm that I graduated from the name of the attended school. You will write here. By making application for admission to India University, I have agreed to allow administrator to officially request my academic records from previously graduated schools. आपने ये फिल कर देना है। मोस्टली ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसको चेक नहीं करती, बट ये रिक्वायरमेंट है। बट समटाइम यूनिवर्सिटी आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर भी सकती है, इसलिए आपने कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रॉन्ग एंटर नहीं करनी। रजिस्ट्रार, आपकी यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं उनका नेम आपने एंटर करना है, उनका एड्रेस, उनका एग्जैक्ट ऑफिशियल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह और बाकी डिटेल आपने ऐड कर देनी है। ये जो पेज है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने फिल करना है खुद। आपने इन्फॉर्मेशन पूछ लेनी, अगर आपको नहीं पता तो आप रजिस्ट्रार को ये फॉर्म दे दें, वो फिल कर देंगे आपके लिए। देन एट द एंड स्टूडेंट के सिग्नेचर आ जाएंगे, मीन टू से आपके यहाँ पर साइन आ जाएंगे और आप यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे। डेट याद रखें, डेट आपने ट्राई करना है कि सब डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा डिफरेंस ना हो डेट्स का। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फुल टाइम स्कॉलरशिप, आपने यहाँ पर भी अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देनी है। अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप किसी प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस नहीं भी है, आप किसी डिपार्टमेंट के लिए एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं एंड लेट्स सपोज आपके पास प्रोफेसर एक्सेप्टेंस नहीं है, तो फिर भी क्या करना है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फुल टाइम स्कॉलरशिप
आपने यहाँ पे ब्रीफ रिसर्च प्लान अपना एंटर कर देना है, वही जो आपने ऊपर एंटर किया था स्टडी प्लान में। आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन सब चीज़ों की एंटर कर देनी है। अप्लाइंग डिपार्टमेंट, योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, अप्लाइंग डिग्री प्रोग्राम, योर नेशनैलिटी एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड योर ईमेल। And next you can see you need to sign here and write down your name here at front of applicant name. आपने इस फॉर्म को लाजमी फिल करना है। और यहाँ पर आपने ऑप्शन ओके कर देनी है। सॉरी, इट्स नॉट फॉर यू, फॉर एप्लीकेंट डोंट राइट। यहाँ पर क्या है कि अगर आपके प्रोफेसर से आपकी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है कि आपने 85% स्कॉलरशिप गेट करना है, तो आपके प्रोफेसर इसको ओके कर देंगे। या अगर आपकी प्रोफेसर एक्सेप्टेंस है तो आप जो स्टिकी नोट होते हैं ना, वो यहाँ पर लगा के आप प्रोफेसर का नेम और वो बाकी डिटेल मेंशन, हिंट मेंशन कर सकते हैं। The last one is placed for full-time student applications. You will fill this form. You need to write down the date, the name of applicant, your name and your signature. और जो ये लास्ट पार्ट है, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखना, ये आपने फिल नहीं करना। अगर आपने किसी इस टाइप के डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या मेडिकल साइंसेस का कोई डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंसेस से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट है या व्हाटएवर, आपका जो भी डिपार्टमेंट है, आपने क्या करना है कि ये जो फॉर्म है ये आपके प्रोफेसर खुद फिल करेंगे। अगर आपके पास प्रोफेसर एक्सेप्टेंस है, किसी प्रोजेक्ट की फंडिंग में प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्ट किया हुआ है, तो क्या है कि ये जो फॉर्म है ये आपके प्रोफेसर आपके लिए खुद फिल कर देंगे। और बाकी आपने ये फॉर्म अटैच लाजमी करना है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में, आपने ये फॉर्म अटैच करना है। द अदर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू हाउ टू सर्च द फैकल्टी मेंबर। आपने जो एडवाइजर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनको कैसे सर्च करना है। और समटाइम क्या होता है कि वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं हमें वहां पर फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन नहीं नजर आ रही होती, सो वी फेस डिफिकल्टी इन दैट केस। तो समटाइम क्या होता है कि अदर ऑप्शन क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया यूनिवर्सिटी की डिटेल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इंडिया यूनिवर्सिटी की फैकल्टी हमने चेक करनी है। फैकल्टी को मैं ईमेल करना चाह रही हूँ, मैं कोई प्रोफेसर किस डिपार्टमेंट का ढूंढना चाह रही हूँ अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का, कि मैं प्रोफेसर को ईमेल करके प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ले सकूँ, प्रोफेसर से रिकमेंडेशन ले सकूँ कि वो मुझे अपनी लैब के लिए एक्सेप्ट कर लें। तो उसके लिए क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिया यूनिवर्सिटी फैकल्टी, इस पर मैंने क्लिक किया है। नाउ हियर यू कैन सी the academic, the college of health care, medical science and engineering. You can see the detail of the faculty member. For example, the professor contact number. Don't try to contact by phone. You need to send an email to get professor acceptance. प्रोफेसर्स की ईमेल होती है, सब प्रोफेसर्स को आपने इंडिविजुअली ईमेल करनी है, अलग अलग ईमेल करनी है। एक ही ईमेल में सबको टैग करके, और सीसी भी क्या ऑप्शन होती है, कॉपी सीसी होती है, और बी भी आई थिंक इस टाइप की ऑप्शंस होती हैं। तो आपने क्या करना है, ये चीज नहीं करनी। आपने टैग नहीं कर देना सबको एक दूसरे के साथ, लिंक नहीं कर देना, आपने सबको इंडिविजुअल ईमेल सेंड करनी है। अब यहाँ पे कॉलेज ऑफ हेल्थ केयर की बाकी डिटेल है कि कॉलेज ऑफ हेल्थ केयर, मेडिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग में आप डिपार्टमेंट चेक कर सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। Here you can see the college information, and I am interested in the College of Business. For example, I want to see the faculty of College of Business. College of Business पे मैंने क्लिक किया है, और व्यू
ओवरव्यू में डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. कॉलेज ऑफ बिजनेस हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्टार्टअप्स, स्कूल ऑफ बिजनेस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म. अगर आप कॉलेज मोर पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में जो बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट हैं वो सब शो हो जाएंगे. यहाँ से आप अदर डिटेल चेक कर सकते हैं किस टाइप के कोर्सेज इस डिपार्टमेंट में पढ़ाए जाते हैं. ओके, माय फोकस वाज आई वांट टू सी द फैकल्टी मेंबर बिकॉज आई वांट टू सेंड email to professor to get the professor acceptance. For example, the Department of Management, you can see the faculty member. यहाँ से हम अदर डिपार्टमेंट के भी चेक कर लेते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्टार्टअप्स, स्कूल ऑफ बिजनेस, Okay, now today's session I provided guidelines to you how to open the university website, how you will see the department and the major in which you want to apply, in which you want to get admission, and further admission application form आपने कैसे fill करने हैं, कौन कौन से admission documents आपको बनवाने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी से, और किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके सैम्पल फॉर्मेट कैसे होते हैं, वो भी आप पेज से फर्दर डिटेल चेक कर सकते हैं. मैंने अपलोड कर दिए हैं सैम्पल. और इसके अलावा जो प्रोफेसर्स हैं उनको आपने ईमेल कैसे करनी है. ठीक है. नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट कि आपने जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का प्रोसेस है वो कैसे करना है. यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है. ऐसे नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में आप एडमिशन अप्लाई करते हैं, आप एडमिशन की जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, डिग्री होती है, उनकी फोटो प्रिंट करवाते हैं, कलर प्रिंट और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट, और आप वो सबमिट करा देते हैं. बट अगर आप किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो क्या है कि आप इस तरह से वो आपके फेक कंसीडर होते हैं, वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कंसीडर नहीं होते. आपने अगर अब्रॉड अप्लाई करना है तो जैसे साउथ कोरिया की हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है. आप एडमिशन गाइडलाइंस में फर्दर चेक कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं एम्बेसी से अटेस्ट हों. एम्बेसी से, जैसे आप कोरिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एम्बेसी ऑफ कोरिया आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट करेगी. एम्बेसी ऑफ कोरिया व्हेन दे विल अटेस्ट योर डॉक्यूमेंट, एम्बेसी ऑफ कोरिया की अटेस्टेशन के लिए आपको पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने पड़ेंगे. मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पहले एचईसी से करवाने पड़ेंगे, देन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, एंड देन आपने अपने डॉक्यूमेंट एम्बेसी में सबमिट कराने हैं. अगर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और एचईसी से आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होंगे तो एम्बेसी कभी भी आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं करके देगी आपको. ये तो कंडीशन है उन यूनिवर्सिटीज के लिए जो डायरेक्ट मांगते हैं सिर्फ एम्बेसी अटेस्टेशन है, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि एम्बेसी अटेस्टेशन ही हो. बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, फॉर एग्जाम्पल द 85 to 90% यूनिवर्सिटीज इन साउथ कोरिया, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो नोटराइज्ड हों या अपोस्टाइल हों. तो आपने क्या करना है, इजी वे क्या होता है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करवानी है. फॉर एग्जाम्पल आपने अभी तक एचईसी से डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं करवाए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से नहीं कराए, एम्बेसी से आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं है, तो आपने डॉक्यूमेंट्स को एलिजिबल कैसे करना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप सबमिट करवा रहे हैं एडमिशन के लिए, कि आपकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो एक्सेप्ट हो जाए. एकेडमिक रिकॉर्ड की एक्सेप्टेंस के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, मैट्रिक की जो आपकी डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है, मेट्रिकल सर्टिफिकेट जो है उसकी ट्रांसक्रिप्ट है, इंटरमीडिएट ट्रांसक्रिप्ट एंड सर्टिफिकेट ऑफ योर डिग्री, एंड देन द बैचलर ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री.
आपने क्या करना है, ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सबकी लेनी है और उनके कलर प्रिंट करवा लेने। कलर प्रिंट करवाने के बाद हर सिटी में नोटराइजेशन का ऑफिस होता है, नोटराइज स्टैंप लगा देते हैं। उसकी थोड़ी बहुत फी होती है, आई थिंक 100 to 200 पर डॉक्यूमेंट होती है। तो हर सिटी में ये ऑप्शन होती है, आप किसी से पता कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन बाकी फर्दर ले सकते हैं कि नोटराइज अटेस्टेशन आपके सिटी में कहाँ से हो रही है। आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स पे ओरिजिनल नोटराइज स्टैंप लगवानी है। फॉर एग्जाम्पल आप 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो सबके लिए आपने 2 से 3 अलग अलग सेट बनवाने हैं। ऐसे नहीं है कि आपने एक नोटराइज डॉक्यूमेंट का स्टैंप करवा लिया है, नोटराइज स्टैंप लगवा ली है एक बंडल पे, एक सेट पर, और बाकी आप कहें कि मैं उनकी कॉपी करवा लूंगा। नो, अगर आप नोटराइज्ड की कॉपी कराएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। नोटराइज की कॉपी आप एक यूनिवर्सिटी में जमा करवा रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपने जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है आपने उनका प्रिंट लेना है और उनको नोटराइज करवा लेना है एक सेट को। अगर आप 2 से 3 यूनिवर्सिटी में एट अ टाइम अप्लाई कर रहे हैं एंड यू वांट टू सी कि एक जगह नहीं तो दूसरी यूनिवर्सिटी में चलो एडमिशन हो जाएगा, तो क्या है कि आप नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट करवाएं। सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं है, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर दें और साथ साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं HEC और ये बाकी जो फर्दर प्रोसेस होता है इसके लिए मतलब अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें। या अगर आपको लगता है कि आपने पहले ये एफर्ट स्टार्ट नहीं करनी, अगर आपका एडमिशन हो जाएगा तो फिर आप HEC मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और एम्बेसी से डॉक्यूमेंट टेस्ट कराएंगे, यू कैन डू एंड गो फॉर दैट वे एज वेल। आप इस ऑप्शन के लिए भी मतलब अपना माइंड बना सकते हैं। तो क्या है कि जैसे लेट्स सपोज एडमिशन ओपन है किसी यूनिवर्सिटी में, आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, आपने एडमिशन अप्लाई करना है, देन व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट print and notarize your document and you will submit along with other required documents. Okay, thank you so much. If you need any more information about admission or any type of help you want to get, तो आपने क्या करना है, फ्यूचर डायमंड कैरियर काउंसलिंग ये मेरा वॉलंटियर पेज है, इस पे मैं इंफॉर्मेशन वॉलंटियर शेयर करती हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन, यहाँ पे अपना जो भी आपकी क्वेरी है आपने पोस्ट कर देनी है। देन जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।